Hello students, this is Pusha Subhani and today I am going to explain you the first chapter of Flamingo, that is the last lesson. So let's get started. Students, first of all, I'll give you a brief intro of this chapter. The last lesson, written by Alphonse Daudet, narrates about the year 1870 when Prussian forces under Bismarck attacked and captured France. The French districts of Alsace and Lorraine went into Prussian hands. The new Prussian rulers discontinued the teaching of French in the schools of these two districts. The French teachers were asked to leave. Now M. Hamel could no longer stay in his school. Still, he gave lesson to his students with utmost devotion and sincerity as ever. One such student of M. Hamel, Franz, who dreaded French class and M. Hamel's iron rod, came to the school that day thinking he would be punished as he had not learned his lesson on participles. But on reaching, he found Hamel dressed in his fine Sunday clothes and the old people of the village sitting quietly on the back benches. It was due to an order from Berlin. That was the first day when he realized for the first time that how important French was for him. But it was his last lesson in French. The story depicts the pathos of the whole situation about how people feel when they don't learn their own language. It tells us about the significance of one's language in one's life for the very existence of a race and how important it is to safeguard it. द लास्ट लेसन चैप्टर लिखा गया है अल्फोंसो डॉडेट के थ्रू, जिसमें कहानी बताई गई है ईयर 1870 की, जब रशियन फोर्सेस अंडर बिस्मार्क फ्रांस पर अटैक किया और उसको कैप्चर कर लिया, यानी बंदी बना लिया। फ्रेंच की दो डिस्ट्रिक्ट्स आल्सेस और लोरियन प्रशिया के हाथों में चली गई। फ्रेंच टीचर्स को वहां से जाने के लिए कहा गया। अब एम हेमेल और ज़्यादा उस स्कूल में नहीं रुक सकते थे, फिर भी उन्होंने अपने लेसन्स पूरे डिवोशन और सिंसिरिटी के साथ बच्चों को दिए। ऐसा ही एम हेमिल का एक स्टूडेंट था फ्रेंच, जो कि फ्रेंच क्लास और एम हेमिल की आयरन रॉड से डरता था। वो यह सोचकर स्कूल आया कि उसको स्कूल में पनिशमेंट मिलेगी क्योंकि उसने पार्टिसिपल्स पर अपना लेसन याद नहीं किया था। लेकिन स्कूल पहुंचने पर उसने पाया कि एम हेमिल ने फाइन संडे क्लोथ्स पहने हुए थे, जो कि वो अक्सर इंस्पेक्शन डे पर या फिर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डेज पर पहना करते थे। और जो गांव के ओल्ड पीपल थे वो क्लासरूम के बैक बेंचेस पर क्वाइटली बैठे हुए थे। ये सब बर्लिन से आए हुए आदेश के कारण था। ये पहला दिन था और पहली बार जब फ्रेंच ने ये रियलाइज़ किया कि उसके लिए फ्रेंच लैंग्वेज कितनी इम्पोर्टेंट है। लेकिन ये फ्रेंच लैंग्वेज का उसका लास्ट लेसन था। इस कहानी में वो वहाँ जो हालात थे, उसकी सिचुएशन में लोगों के जो दुख था, जो व्यथा थी, उसको प्रकट किया। उनको क्या महसूस हो रहा था कि जब वो अपनी भाषा नहीं सीख पाए थे। और इसमें बताया गया है कि भाषा का किसी की ज़िंदगी में क्या महत्व होता है, अपनी जाति को, अपने वर्ग को के एक्सिस्टेंस को, उसकी अस्तित्व को बचाए रखने में और उसको सुरक्षित रखना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। Now, students, I will tell you the detailed story of this chapter. Franz started for school very late that morning. He was afraid of being scolded because M. Hamel was to question them on participles, and he did not know the first word about them. He thought of running away and spending the day out of doors. The warm, bright day, the chirping birds, and the Prussian soldiers drilling in the open field back of the sawmill were tempting. But he resisted the temptation and hurried off to school. There was a crowd in front of the bulletin board near the town hall. Vetcher the blacksmith asked Franz not to go so fast. He assured the boy that he would get to the school in plenty of time. Usually there was a great bustle when the school began, but that day everything was as quiet as Sunday morning. फ्रेंड्स उस सुबह स्कूल के लिए देरी से चला। उसे डर था कि एम हेमेल उसको डांट लगाएंगे, क्योंकि उस दिन एम हेमेल पार्टिसिपल्स पर क्वेश्चंस पुट अप करने वाले थे, क्वेश्चंस पूछने वाले थे, और उसे उसका पहला शब्द भी मालूम नहीं था। उसने सोचा कि वो स्कूल से भाग जाए और अपना दिन बाहर गुजारे। बाहर मौसम बहुत सुहावना था, चिड़िया चहचहा रही थी और प्रशियन सोल्जर्स आरा मशीन के पीछे खुले मैदान में युद्ध अभ्यास कर रहे थे। ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा लुभावनी थी, लेकिन किसी तरह से उसने इस प्रलोभन को रोका और स्कूल के लिए तेजी से चल पड़ा।
उधर टाउन हॉल के पास बुलेटिन बोर्ड के सामने बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी। वेचर जो कि एक ब्लैक स्मिथ था, उसने फ्रेंड्स को तेज़ी से ना जाने के लिए कहा। उसने उस लड़के को यानी फ्रेंड्स को आश्वस्त करते हुए कहा कि स्कूल पहुंचने में अभी काफ़ी समय है। साधारणतः जब स्कूल शुरू होता था तो बहुत ज़्यादा चहल-पहल, बहुत ज़्यादा शोर-शराबा होता था, लेकिन उस दिन वहाँ पर बिल्कुल खामोशी थी, बिल्कुल शांति थी, जैसे कि कोई संडे मॉर्निंग में होती थी। Through the window, Franz saw his classmates already in their places and M. Hamel walking up and down with his terrible iron ruler under his arm. Franz opened the door and went in. He blushed and was frightened. M. Hamel very kindly asked him to go to his place. Franz noticed that their teacher had put on his beautiful green coat, his frilled shirt, and the little black silk cap, all embroidered. He wore these only on inspection and prize days. The village people were sitting quietly on the usually empty back benches. Everybody looked sad, and Hauser had brought an old primer. M. Hamel said that it was the last lesson and he would give them. Henceforth, only German was to be taught in the schools of Alsace and Lorient. The new teacher would come the next day. This was their last lesson of French. He wanted them to be very attentive. फ्रेंड्स ने खिड़की से झाँक कर देखा, उसके क्लासमेट्स पहले ही अपनी जगह पर बैठे हुए थे और एम हेमिल बगल में अपना आयरन रूलर दबाकर क्लासरूम में इधर उधर राउंड ले रहे थे। फ्रेंड्स ने दरवाज़ा खोला और वो अंदर गया। उसका चेहरा लाल पड़ चुका था और वो काफ़ी डरा हुआ था। एम हेमिल ने काफ़ी विनम्रता से फ्रेंड्स से कहा कि वो अपनी जगह पर जाकर बैठ जाए। फ्रेंड्स ने नोटिस किया कि उसके टीचर ने अपना ब्यूटीफुल अटायर पहना हुआ था, स्पेशल जो वो ख़ास पोशाक पहना करते थे जिसमें ब्यूटीफुल ग्रीन कोट था, उनकी झालर वाली शर्ट थी, फ्रिल्ड शर्ट थी और एक छोटी-सी ब्लैक सिल्क की कैप थी। ये सभी कपड़े एम्ब्रॉयडर्ड थे, इन सब पर एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी और ये जो स्पेशल अटायर था वो अक्सर इंस्पेक्शन डेज़ पर या फिर प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन डेज़ पर पहना करते थे। और जो गाँव के लोग थे वो क्वाइटली उन लास्ट बैक बेंचेस पर बैठे हुए थे जो अक्सर खाली रहा करती थी। सभी लोग काफ़ी दुखी लग रहे थे और जो ओल्ड हाउसर थे वो अपने साथ एक ओल्ड प्राइमर बुक भी लेकर आए थे। एम हेमिल ने कहा कि आज जो वो लेसन पढ़ाएंगे वो उनका आखिरी लेसन होगा। अब से वहाँ पर सिर्फ जर्मन की पढ़ाई हुआ करेगी, यानी कि आल्सेस और लोरियन जो 2 डिस्ट्रिक्ट्स थी वहाँ पर अब सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाया करेगी और नेक्स्ट डे उनके जो नए टीचर हैं वो आ जाएंगे। ये उनका एक फ्रेंच लैंग्वेज का आखिरी लेसन था, यानी लास्ट लेसन था और एम हेमिल चाहते हैं कि वो सभी काफ़ी अटेंटिव रहें, ध्यानपूर्वक उन्हें सुनें। Franz felt sorry that he had not learnt his lessons properly. The idea that M. Hamel was going away made the narrator forget all about his ruler and how cranky he was. Now Franz understood why M. Hamel had put on his new Sunday clothes and why the old men of the village were sitting there. They had come to thank the master for his 40 years faithful service and to show their respect for the country that was there no more. M. Hamel asked Franz to recite, but he stood there silent. The teacher did not scold him. He confessed that his parents and he, the teacher, were at fault. Then he talked of the French language, the most beautiful language in the world, the clearest, the most logical. He asked them to guard it among them and never forget it. Their language was the key to their prison. Then they had lesson in grammar and writing. The pigeons cooed very low on the roof. Franz thought if they would make even the pigeons sing in German. All the while M. Hamel was sitting motionless in his chair and gazing at one thing or the other. His sister was packing their trunks in the room above as they had to leave the country next day. फ्रेंड्स सॉरी फील कर रहा था, उसे बहुत दुख हो रहा था कि उसने अपने लेसन्स ध्यान से क्यों नहीं पढ़े, उसने उन्हें प्रॉपरली क्यों नहीं पढ़ा और एम हेमिल के जाने का समाचार सुनकर उसे बहुत बुरा लग रहा था। उनका जो आयरन रूलर था या जो उनका क्रूर वो जो बहुत ज़्यादा क्रूर थे उस सब के बारे में वो बिल्कुल भूल गया। अब फ्रेंड्स ये समझ गया था कि एम हेमिल ने अपने संडे क्लोथ्स क्यों पहने थे और गाँव के जो ओल्ड पीपल थे वो वहाँ आकर क्यों बैठे हुए थे।
ये उनका तरीका था कि वो अपने मास्टर की जो फेथफुल सर्विस थी, जो उन्होंने 40 इयर्स तक स्कूल की सेवा की एम हैमिल ने, उसके लिए वो थैंक्स बोलने के लिए आए थे, शुक्रिया अदा करने के लिए आए थे और अपनी कंट्री के प्रति रिस्पेक्ट शो करने के लिए आए थे, जो उनकी अब नहीं रह गई थी। एम हैमिल ने फ्रेंड्स से कहा कि वो पार्टिसिपेंट्स के रूल्स सुनाए, लेकिन वो खामोश खड़ा रहा। एम हैमिल ने उससे डांटा नहीं, बल्कि ये चीज़ उन्होंने ये कन्फेस किया कि इसके लिए पेरेंट्स ज़िम्मेदार हैं और साथ ही साथ टीचर की भी गलती है। पेरेंट्स और टीचर दोनों ही की गलती है। फिर उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बोलना शुरू किया। उन्होंने कहा कि फ्रेंच लैंग्वेज जो है वो दुनिया की सबसे खूबसूरत भाषा है, सबसे ज़्यादा क्लियरेस्ट और लॉजिकल लैंग्वेज है। उन्होंने लोगों से कहा कि वो इसको आपस में जीवित रखें और उसे भूलें ना। लैंग्वेज जो होती है यानी भाषा जो होती है, वो कैद से बाहर निकलने की एक चाबी की तरह होती है। फिर उसके बाद हमारा ग्रामर और राइटिंग का लेसन था। छत पर कबूतर जो हैं वो बहुत धीमी आवाज़ में कूइंग कर रहे थे, यानी आवाज़ कर रहे थे। फ्रेंड्स ने सोचा कि क्या जर्मन लोग जो हैं वो इनको भी जर्मन लैंग्वेज में गाना सिखाएँगे। और इस दौरान एम हैमिल बिल्कुल मोशनलेस चेयर पर बैठे हुए थे, कुर्सी पर बैठे हुए थे, बिल्कुल स्थिर कंडीशन में, बिल्कुल मोशनलेस, और छत के इधर-उधर सारी चीज़ों को वो देख रहे थे। उनकी बहन जो है वो ऊपर बक्से पैक कर रही थी, अपना सामान जो है वो पैक कर रही थी, क्योंकि उन्हें नेक्स्ट डे वहाँ से जाना था। After writing, they had a lesson in history, and then the babies chanted their ba, bee, bee, boo, boo. Even old Hauser was crying. All at once, the church clock struck 12, and then the midday prayers. At the same moment, the trumpets of the Prussian returning from drill sounded under the windows. M. Hamel stood up. He wanted to speak, but something choked him. Then he took a piece of chalk and wrote on the blackboard as large as he could, Vive la France. After this, he stopped and leaned his head against the wall. Without a word, he made a gesture with his hand to indicate that the school was dismissed and they might go. राइटिंग के लेसन के बाद उनका एक इतिहास का लेसन था, और उसके बाद जो छोटे बच्चे थे उन्होंने बा, बी, बी, बू, ये सब जो है ज़ोर-ज़ोर से उसकी चैंटिंग करनी शुरू की, ज़ोर-ज़ोर से बोलना शुरू किया। यहाँ तक कि जो ओल्ड हाउज़र था वो भी रो पड़ा। उसी वक़्त चर्च का जो क्लॉक था उसमें 12 बजे की घंटी बजी, और उसके बाद जो है मिड डे प्रेयर यानी कि दोपहर की प्रेयर हुई। उसी वक़्त जो प्रशियन सोल्जर्स थे वो ट्रम्पेट्स बजाते हुए वहाँ पर आए, अपने जो युद्ध अभ्यास से उससे वापस आए। उसकी आवाज़ जो है, उसकी ध्वनि जो है वो विंडो के नीचे से यानी खिड़की के नीचे से सुनी जा सकती थी। एम हैमिल खड़े हो गए। वो कुछ कहना चाहते थे, लेकिन किसी चीज़ ने उनका गला जो है वो रूंध दिया, यानी उनका गला चोट हो गया और वो कुछ भी नहीं कह पाए। उसके बाद उन्होंने एक चॉक का टुकड़ा लिया और बोर्ड पर वो जितना बड़ा लिख सकते थे उन्होंने लिखा वाइव ला फ्रांस, यानी कि फ्रांस जो है वो लंबे समय तक जीवित रहे, अमर रहे। और इसके बाद उन्होंने उसके बाद वो रुक गए और उन्होंने दीवार के पास जो है झुककर वो खड़े हो गए। बिना एक भी शब्द कहे उन्होंने हाथ के इशारे से बच्चों को जाने का इशारा किया कि स्कूल की छुट्टी हो गई और वो लोग जा सकते हैं। Dear students, I have attached a PDF file of important question answers, so kindly go through it and note down question answers in your notebooks. Thank you so much.